Assalamu alaikum student. Here we welcome back to all. Today student we will going to learn and understood our science chapter number 7 metals and non-metals. ओके स्टूडेंट पहले हम क्या करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप लोगों ने प्रीवियस चैनल में भी पढ़ा होगा आई नो दैट है ना। मेटल्स क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा, तो हम दोनों भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों पढ़ेंगे। इसके पहला मेटल्स क्या होते हैं ये मैं आपको पहला एक छोटे से वीडियो के थ्रू बताती हूँ, फिर हम हमारे आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, You must have all heard the terms metals and non-metals. Can you look around and see if they exist in your surroundings? What is your table made up of? Aluminium or wood? What about the phone or the laptop you're viewing this video on? Is it made up of metals and non-metals? As a matter of fact, it is. Almost everything around will be made up of either a metal or a non-metal. But how do you differentiate between the two? Is it as easy as the difference between the two colors black and white? Well, for that, let us look at the physical properties of each category in detail. Let us take for example the ornaments. Any of the ornaments will do. What do you have to say about them? You will observe that most of them are made up of gold or silver. Let us look at them closely. Do they have a shining surface? Or even the aluminium utensil in the kitchen? Does it shine? Of course, both gold and aluminium have a certain shine. Do you know what this shine is called? Well, it is called luster, and as both gold and aluminium are metals, this is known as metallic luster. Now we know that metals have a metallic luster. Now if the utensil drops on the floor, does it break into parts? No, right? That is because metals are generally hard in nature. However, this hardness varies from metal to metal. A very thin plate of gold, for example, can be easily broken with a little pressure. Plate? Did I say plate of gold? How do you think huge aluminium sheets are made? Or sheets of copper or zinc? If I take a hammer and beat them, will they break or will they turn into sheets? It is the amazing property of metals to be beaten into sheets, and we call this property of metals as malleability of metals. Most metals can be beaten into thin sheets. Do you know another important property of metals? Have you ever seen copper wires or thin gold wires used to make jewelry? Metals, by nature, can also be drawn into wires. Do you have any clue as to what this property is called? It's called ductility of metals. The ability of metals to be drawn into wires is called ductility. There is an amazing fact I want you to know. A single gram of gold can be drawn into a 2-kilometer long wire. Isn't that amazing? Well, there are some more interesting properties of metals which we will learn in our next lesson. okay student, now you have seen the video. Now we will going to understand the metals and non-metals from our textbooks. Okay, all the objects or materials in the world are made from elements, compounds and their mixtures. जितने भी ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल इस दुनिया में हैं वो किससे बने गए हैं? वो एलिमेंट से बने गए हैं, कंपाउंड से बने गए हैं और उनके मिक्सचर से बने गए हैं। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या है और मिक्सचर्स क्या है, ये हमने एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। ठीक है,
Scientists classify all the elements into three general types, which are metals, non-metals and metalloid. ठीक है बेटा, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एलिमेंट्स को तीन ऐसे जर्नल्स में क्लासीफाई किया है, तीन पार्ट में, तीन टाइप में क्लासीफाई किया है. सबसे पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा बोला है मेटलॉइड्स. अब मेटल्स क्या है पहले हम वो देखेंगे. ठीक है बेटा. मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पेटिलियम आर फ्यू मेटल्स. ये जो गोल्ड है, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पेटिलियम, सोडियम, ये सब क्या है बेटा? मेटल्स के नाम हैं. ठीक है. मेटल्स हैव लस्टर. मेटल्स जो है वो लस्टर होते हैं. लस्टर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? कि वो जेंटली शाइन करते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट ग्लो होते हैं. समझ में आया? मेटल्स, द मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. वायर और शीट कैन बी फ्रॉम मेड मेटल्स. जो वायर होते हैं और कोई भी शीट्स होती है वो किससे बनती है? मेटल से बन सकती है. मेटल्स आर क्लासिफाइड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर दो अपनी टेक्स्ट बुक में कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. मतलब मेटल्स पे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं होता है. ठीक है. सॉरी, असर होता है. मेटल्स का जो है असर होता है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? मेटल पे असर होता है. मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज आइकॉन, दैट इज केशन. बेटा मेटल्स जो होते हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसकी वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो लूज करती है, मतलब लीव करती है, क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज बनाना होता है. और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आयन होता है. आयन किसको बोलते हैं? वो एक एटम से या फिर मॉलिक्यूल होता है. ठीक है. विथ द नेट इलेक्ट्रिक चार्जेस ड्यू टू लूज और ग्रेन और वन मोर इलेक्ट्रॉन. मतलब इसके पास ये एक एटम्स टाइप होता है, एटम या मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है? अपने जो पावर्स होते हैं वो लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं. ठीक है. एक और इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए. कैशंस आर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. कैशन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं. वन कैन वुड बी अट्रैक्ट द कैडोन इलेक्ट्रोलाइसिस. मतलब कैशन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आइकॉन होते हैं जो लूज करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो कैच करने की कोशिश करता है पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए. उसको बोलेंगे हम लोग कैशन. नाउ वी गोइंग टू सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल स्टेट. अंडर द ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट. अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर अगर की बात करेंगे हम, तो मेटल जो है वो कौन से स्टेट में दिखता है आपको? सॉलिड स्टेट में. हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शन विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन एट द रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी और गैलियम भी बेटा क्या है? एक मेटल्स ही है, लेकिन वो कौन से स्टेट में है? वो लिक्विड स्टेट में है. अगर रूम टेम्परेचर पे भी अगर उसको हम रखेंगे ना तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होता है, जिसका नाम है मर्क्यूरी एंड गैलियम. गैलियम कैसा होता है? एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मटेरियल होता है, जिसकी अगर उसको हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है. समझ में आई बात बेटा? ओके.
You might have seen doctors pressure gauges to measure the blood pressure during your visiting to the dispensary, accompanying your relatives. बेटा ये बोला गया है कि जब आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके या फैमिली मेम्बर के साथ, तो डॉक्टर के पास एक गैजेट है जो प्रेशर मेजर करता है ना. इन दैट यू माइट हैव सीन द ग्रे कलर लिक्विड इन द ग्लास ट्यूब. जो ग्लास ट्यूब वो लगाता है ना, ग्लास जब ओपन करता है प्रेशर की मशीन, तो देखो जब ओपन करता है तो जो रेक्टेंगल टाइप में जो उसके पास बॉक्स होता है ना, उसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होता है और ग्लास ट्यूब में ग्रे कलर का एक लिक्विड होता है. वही लिक्विड होता है गैलियम या फिर मर्क्यूरी. समझ में आया? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैलियम या फिर मर्क्यूरी. यस, मर्क्यूरी होता है जो जब आपका प्रेशर वो पंप से पुश करता है तो आपको पता चलता है कि आपका प्रेशर हाई या लो है. वो मर्क्यूरी अपना टेम्परेचर जो है वो बताती है. समझ में आया? सेकेंड वी गोइंग टू सी द लस्टर. टेक कॉपर वायर एट द वॉल एट योर होम. कॉपर वेसल बोला है घर पे लेके जाने. कॉपर वेसल नॉर्मली सबके घर पे अवेलेबल होता है पुराने ज़माने में. नाउ वी डोंट नो. स्क्रब देम विद द लेमन एंड द रेजिन्स विद द वाटर. जो कॉपर वायर को अगर आप कोई भी नींबू से साफ़ करोगे और पानी से आप धो, ठीक है, क्लीन वाटर से आप उसको साफ़ करो. ऑब्जर्व द लेस्चर बिफोर एंड आफ्टर द क्लीनिंग. पहले आपने जो कॉपर बर्तन लाया था वो देखो और बाद में क्लीन करने के बाद जो उसका कलर होता है या क्लीनिंगनेस चेंज होती है वो देखो. लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन एंड फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल एंड मेटल लुक लेस्चरस. ठीक है बेटा, क्या बोला है कि आप जो देखोगे ना उसके जब पुराना अगर मेटल आप लाते हो, कोई भी तांबे का बर्तन या फिर हम बोलेंगे पित्तल का बर्तन, अगर उसको रखोगे देखो उसके कैसे अलग ब्राउन कलर या फिर ऐसा ब्लैकिश या फिर ऐसा समथिंग ऐसा अलग कलर का वो बन दिखता है. लेकिन जब उसको नींबू से, ठीक है, प्रॉपरली साफ करोगे ना तो वो शाइन करने लगता है. लेस्चर का मतलब ये है कि कोई भी मेटल जो क्या करे, सॉफ्ट शाइन करे. ठीक है. Now we are going to see the hardness. Generally metals are hard. ज़्यादा करके क्या बोला है, मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, नॉट सॉफ्ट. ठीक है. एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, कैन बी इजीली कट विद बाय द नाइफ. सिर्फ अगर हम बात करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम क्या है, सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से कट हो सकते हैं. बाकी जितने भी मेटल्स है वो क्या है, हार्ड है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी हम लोग बोलेंगे लचीलापन. ठीक है. हैव यू एवर गॉन टू द गोल्डस्मिथ शॉप. क्या तुम कोई भी सोनार की दुकान पे, गोल्डस्मिथ हम बोलेंगे सोनार की दुकान पे आप गए हैं? नॉर्मली हम यस में आंसर आएगा, है ना, क्योंकि पेरेंट्स के साथ कभी कभी हम लोग चले जाते हैं. हैव यू सीन द गोल्डस्मिथ मेकिंग वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर. क्या आपने देखा कि गोल्डस्मिथ जो है वायर जो है गोल्ड और सिल्वर से कुछ बना रहा है? When the metals is pulled through the hole, it wire is formed. जब मेटल्स को हम लोग किससे, एक होल से थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे, पुल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वायर बनेगा. दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी. इसका मतलब है कि हम ऐसे कोई मेटल्स को क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट करके उसका न्यू शेप लेके आ सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी. नाउ वी विल गोइंग टू सी द फिफ्थ पॉइंट, मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी मतलब मेलेबिलिटी हम बोल सकते हैं कि हम और कितनी कोशिश करें मेटल्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बढ़ने की योग्यता. वी कैन से ट्राई टू डू हार्ड. ठीक है, मेलेबिलिटी. टेक एन आयरन नेल, प्लेस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म
एंड कीप ऑन हैमरिंग इट। एक आयरन नेल लो, ठीक है, खिल्ला, उसको तुम हथौड़े से मारो। आफ्टर सम टाइम यू विल सी द थिन शीट फॉर्मिंग। क्या देखोगे कि वो जो आयरन है, जो कील है, जितने बार, जितना जोर से, जितने बार उसको आप मारोगे वो फ्लैट होगा, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी ऑफ अ मेटल। इसको हम लोग बोलेंगे मैलेबिलिटी ऑफ मेटल। मीन्स कैन चेंज द शेप। मैलेबिलिटी मीन्स कैन चेंज द शेप। Okay. Now next we want to see the condension of heat. Take a copper plate, fix some wax on one of its end, heat the other end and observe what happened. Discuss with your teacher. Metals are good conductor of heat. Silvery, copper, aluminium are best conductor of heat. अब देखो स्टूडेंट क्या बोला है। एक कॉपर की प्लेट लो, एक साइड में आप वैक्स रखो और उस प्लेट की दूसरे साइड को हीट करो, तो क्या होगा बेटा। मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट मैंने बताई हूँ। अगर ऑब्वियसली अगर एक साइड हम हीट करेंगे, ठीक है, तो एंटायर पूरे प्लेट गर्म हो जाएगी, होती है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम का नाम दिया वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम देखेंगे। विच मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। आपने देखा है ये आपकी इलेक्ट्रिक वायर जो होती है, ये एक तो पहले बाहर जो है ना वो प्लास्टिक या हार्ड प्लास्टिक से बना रहता है, और जब आप छीलोगे उसको, जब नाइफ से उसको आप कट करके देखोगे तो अंदर आपको स्मॉल स्मॉल तार दिखते हैं। वो तार क्या होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं वो, कॉपर के, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब उस मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लीड एंड एक्सेप्शन, लीड की बात छोड़ दो। लीड क्या है, विच इज नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लीड ये एक ऐसा मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी नहीं बुला सकते हैं, ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी बुला सकते हैं। समझ में आया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ हम गोइंग टू सी, वी विल गोइंग टू सी द डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स द पावर, ओके। मेटल हैव हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम, पोटेशियम, lithium are exception having low density than water. मेटल की डेंसिटी बहुत है, हाई डेंसिटी है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को छोड़ दो क्योंकि उनकी डेंसिटी वाटर से कंपेयर करेंगे तो भी कम है। समझ में आया, मतलब उसकी मजबूती, उसकी पावरनेस। डेंसिटी ऑफ लिथियम इज 0.53 ग्राम पर सीसी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं हम लोग। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन HgGaNaK। ये जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला है ये इन सब को छोड़कर, ठीक है, इन सब को छोड़कर क्या बोला गया है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बाकी सब मेटल्स की, वो कैसी है, काफ़ी अच्छी है, हाई होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सोरोनिटी। सोरोनिटी मतलब क्वालिटी या फैक्ट, ठीक है। सोरोनिटी क्या बोलता है, क्वालिटी या फिर फैक्ट बताता है। व्हाट इज द मैटर दैट योर स्कूल बेल इज मेड ऑफ। आपने देखा आपके स्कूल का बेल सुना होगा ना, वो किससे बना होता है, वो एक लोखंड से बना होता है ना। हाउ डज बेल इज फंक्शन, बेल कैसा फंक्शन करता है, क्योंकि बेल के पास अपनी एक आवाज़ होती है, ठीक है, क्वालिटी होती है उसकी। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्टिकिंग। हमने पढ़ा था ना 4th चैप्टर में इलेक्ट्रिक बेल का काम कैसा होता है ना। उसी तरीके से मेटल जो है वो सोनोरस है, मतलब उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है, वह फैक्ट बताता है और जिससे बेल की आपको आवाज़ सुनाई देती है। आई बात समझ में। ये है हमारा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके बेटा। नाउ
we will going to see non-metals. Before that, to start the non-metals, non-metal क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम पहला एक छोटा सा वीडियो देखते हैं. उस वीडियो में आपको नॉन मेटल के बारे में सब बताया गया है. ओके? We learned 4 properties of metals in our earlier video. Can you name them for me? Metallic luster, malleability, ductility, and that they are hard. These were the 4 properties, right? Can you think of some more properties of metals? Metal utensils are used for cooking, aren't they? Why do you think they're used for this purpose? Which energy do we need to cook food? Heat energy. Correct. We need heat energy to cook food, and metal utensils are good conductors of heat. They help transfer heat evenly through the entire surface and provide even heating. No doubt, most metals are known to be good conductors of heat. Do you know the 2 best conductors of heat? They are silver and copper. 2 other metals like lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. Electric wires were also made up of metals, right? Why is that? It's because they are good conductors of electricity too. If we have a battery and a bulb connected in a circuit with a metal wire, you will see that the bulb will glow when the switch is closed. And because they are good conductors of electricity, they are coated with rubber-like material. This rubber-like material acts as an insulator which protects us from being electrocuted if we touch the wire by mistake. Do you know any other property of metals? What happens when we strike a metal on a hard surface? Like utensils banging against the sink. Can you hear a sound produced by metal? Yes, this is another property of metals. We can call metals as sonorous, meaning they produce sound when hit against a hard surface. No doubt, school bells, church bells, or the bells in a temple are made up of metals. If these are the characteristics of metals, what do you think will be the characteristics of non-metals? In simple words, just the opposite of metals. In a nutshell, non-metals like carbon, iodine or sulfur do not have luster. They do not shine and are brittle in nature. What do we mean by brittle? They cannot be beaten into sheets or wires as most of them turn into powder when hit by a hard substance. Non-metals can also be gases like oxygen, hydrogen or solids like carbon, sulfur, etc. Do you know of any non-metal in the liquid state? Bromine is the only non-metal which is in the liquid state. Non-metals do not conduct heat or electricity, and they do not produce that sound when hit against a hard surface. This means that they do not have the property of sonority. So isn't it easy and simple to differentiate between metals and non-metals only on the basis of their physical properties? Wait, but mercury is a metal in liquid state at room temperature and bromine is a non-metal in a liquid state at room temperature. How do we differentiate between the two based on physical properties? We can say that all metals are solids at room temperature except mercury, and all non-metals are either solid or gaseous except bromine. Well, this is not it. There are a few more exceptions that break the physical appearance norms of metals and non-metals. For example, most metals have high melting point, which means that they need a large amount of heat to melt. But look at the two metals gallium and cesium. They melt when you keep them on your palm. We must say then that these two metals have a very low melting point. Look at another exception in non-metals. Iodine, for example, is a non-metal, but it has a property of the metals. Can you point out which property I'm talking about? Correct, the luster. Iodine has shine or luster, which is technically the property of metals. Take another example, carbon, for instance. What is carbon?
Is it a metal or non-metal? Yes, carbon is a non-metal, but look at diamond or graphite. They all come from carbon. They are known as allotropes. The different forms in which carbon can exist are called its allotropes. Let us look at the allotrope diamond of carbon. It is known as the hardest substance and has an extremely high melting point and boiling point. Aren't these the properties of metals? But it is surprising that diamond is an allotrope of carbon, which is non-metal. Diamond too is a non-metal which strongly exhibits the properties of metals. Now that we know of so many exceptions, do you think it's easy to differentiate between metals and non-metals based on their physical properties? I doubt that, but don't worry. There is another way out of this. It is to differentiate the two based on their chemical properties. How is that done? For that, you will have to watch our next lesson. ओके आपने वीडियो अभी देख चुके हो. नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द आवर टेक्स्ट बुक. क्या है? नॉन मेटल. नॉन मेटल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल्स. Generally, non-metals are brittle and non-lustrous. non-metal कौन से हैं? कार्बन है, ठीक है, सल्फर है, फॉस्फोरस है. ये कुछ नॉन मेटल्स के नाम बताए गए हैं. जनरली नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल्स होते हैं और नॉन लस्टरस होते हैं. ब्रिटल मतलब वो आसानी से टूट सकते हैं और नॉन लस्टरस मतलब वो शाइन नहीं करते, वो सॉफ्ट नहीं होते, वो शाइन नहीं करते. चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉन मेटल्स की. फिजिकल स्टेट. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स ऑकर अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड C कार्बन, S सल्फर, S P. लिक्विड में ब्रोमीन, Br2 ब्रोमीन. गैसेस में H2 मतलब हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन O2. ठीक है बेटा. फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर की, जो नॉन मेटल की, जो अगर हम देखें कि एक नॉन मेटल ऑर्डिनरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे जो उसका कंसिड होता है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस भी होता है. ठीक है. इसका लस्टरस देखते हैं. लस्टर. नॉन मेटल डज नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन क्रिस्टल. यहाँ देखो स्टूडेंट, नॉन मेटल जो है वो बिल्कुल शाइन नहीं करते, सिर्फ डायमंड और आयोडीन क्रिस्टल को छोड़कर. सब नॉन मेटल्स आर कलरलेस. कुछ ऐसे नॉन मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं. वाइल अदर हैव डिफरेंट कलर्स. और कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जिनके अपने एक कलर होता है. ज़्यादा करके नॉन मेटल्स कलरलेस होते हैं. वॉट इज कलर ऑफ द कार्बन इन द कोल? कोयला देखा है आपने? कोयले अगर हम जलाते हैं तो उसका कार्बन बनता है ना, तो क्या कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है ना. सल्फर इज येलो. सल्फर कौन से कलर का होता है? येलो. ब्रोमाइन कौन से कलर का होता है? ब्राउन. ये सब क्या है? ये ऐसे का नॉन मेटल्स है जो बिल्कुल भी शाइन नहीं करते हैं. अब ब्रिटलनेस देखते हैं. टेक अ कोल एंड हमर इट, सी व्हाट इट हैपन. एक कोयला लेने बोला है, उसको हथौड़ी से मारने बोला, तो क्या देखेंगे बेटा? आप लोगों को क्या समझ में आया? अगर हमने कोयले को हथौड़ी से मार लिया तो कोयला जो सॉलिड स्टेट में है वो क्या हो गया? पाउडर हो गया, वो बुक्का हो गया, बारीक बारीक पार्टिकल्स हो गए उसके. सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. इसका मतलब है कि नॉन मेटल जो है वो आसानी से टूट सकते हैं. समझ में आया? सब नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. कुछ नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. जैसे डायमंड. द एटोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. डायमंड्स कहाँ से बनते हैं बेटा? ये कार्बन के स्ट्रक्चर से बनते हैं. कार्बन के एटोट्रॉप्स के स्ट्रक्चर से बना जाता है. इन इज एन एक्सेप्शन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. डायमंड इज एन नेचुरल सब्सटेंस जो ऑलरेडी हार्ड होता है. ठीक है. इसको छोड़ के सारे नॉन मेटल्स क्या है? ब्रिटल है, मतलब वो टूट सकते हैं आसानी से. नाउ वी गोइंग टू सी ductility and malleability. Non-metal are neither ductile nor malleable. ठीक है. नॉन मेटल्स क्या है?
डक्टाइल है और नॉन मेलेबल है, मतलब वो कभी कभी आपको लचीलापन नहीं दे सकते हैं, कभी कभी मेलेबिलिटी, कभी 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 वो चेंज भी होते हैं, अपने शेप को करते हैं, कभी कभी अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर बैक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल के ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी असर नहीं होता है, इसीलिए बोला गया है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी किससे बनता है? कार्बन से बनता है, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट ऐसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसी को छोड़ के नॉन मेटल में बाकी सब नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी देखते हैं, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, अगर हम देखें नॉन मेटल की जो पावर होती है वो सबसे कम ही होती है, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम कंपेयर करेंगे मेटल को, मेटल हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल बहुत लो टेम्परेचर में हो जाता है। एक्सेप्शन दिया हुआ है, सॉलिड नॉन मेटल कार्बन एंड ब्रोमाइन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। जो सॉलिड होता है कार्बन, ठीक है, वो बहुत कम जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे ख़त्म होता है, और ब्रोमाइन हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या है? मेटालॉइड सम एलिमेंट्स सच एज एरेंस्टिक मतलब AS, सिलिकॉन SI, जर्नीनियम GE, एंटीमोनी SB, ये सब जो है ना बेटा ये एक सब्सटेंसेस है, ठीक है। हैव प्रॉपर्टी विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में ही रह गए, ना वो नॉन मेटल बने ना वो मेटल्स बने, ठीक है। इसीलिए इनको हम लोगों ने मेटालॉइड बोला है, मेटालॉइड बोला है। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेस्ड ऑन केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। अगर हमने किसी केमिकल प्रॉपर्टी देखे ये मेटालॉइड की, तो ये कैसी है? ये बेस करता है, मतलब ये रहता है केमिकल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैव अपॉन 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट और शेल्फ। जो आउटरमोस्ट शेल्फ होता है, ठीक है, सारे मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटलीस्ट 3, ठीक है। ये आपको टेबल्स दिया गया है। नाउ वी गोइंग टू सी फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मेटल हैव एन टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आइकॉन, दैट इज कैशन। बताई थी ना मैंने कि मेटल्स ऐसे हैं जो अपनी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी खो सकता है, क्योंकि उसको पॉजिटिव पार्टिकल्स जो आयन है वो बनाना है, मतलब एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करके पॉजिटिव चार्ज वो बना सकते हैं, ठीक है। सी दैट इज Na सोडियम एंड Na प्लस Le मतलब सोडियम आइकॉन, ठीक है। मैग्नीशियम Mg मैग्नीशियम आइकॉन, तो मैग्नीशियम की केमिकल फॉर्मूला है Mg और आइकॉन का 2E। फिर एल्यूमिनियम Al, जहाँ पर हम 3 बार जो है इलेक्ट्रॉन वो क्या है अपने पावर्स को खोता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ये मेटालॉइड के जो एलिमेंट्स होते हैं या मेटालॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो वो ऑक्साइड बन जाता है। जैसे मेटल और ऑक्सीजन को बनाते तो मेटल ऑक्साइड बन गया, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर बेस इन नेचर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड बेसिक है नेचर में। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अगर हम सिंपल एग्जांपल देंगे, जो वाटर और सॉल्ट है, ठीक है, वो अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट एंड वाटर, अलग अलग पार्टिकल्स। फिर मेटालॉइड प्लस एसिड इज इक्वल्स टू
सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेटोलॉइड को एसिड से हमने रिएक्ट किया तो आपको क्या मिला, वाटर और सॉल्ट मिला। समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ एसिड। टेक अ dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड in a टेस्ट ट्यूब, देन ऐड अ जिंक डस्ट टू इट। एक टेस्ट ट्यूब में आप लोगों को dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने बोला है और उसके अंदर कुछ आपको जिंक डस्ट डालने बोला है। टेक अ ग्लोइंग स्प्लिटर नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। ग्लोइंग स्प्लिटर कैसा होता है, स्मॉल थिन शार्प पीस ऑफ वुड, ठीक है, जो जलाया जाता है ना, लकड़ी, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा जो जलाया गया है, ठीक है, वो आपको उसको माउथ के पास, मतलब वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर ले जाना है। ऑब्जर्व द ग्लोइंग स्प्लिटर। अब देखो क्या होता है, वो जो आग होती है ना वो और बढ़ने लगती है। यू विल नोटिस सम साउंड कमिंग फ्रॉम आउट। आप देखो कि टेस्ट ट्यूब से कुछ आवाज़ें आपको दिख रही है। मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद द dilute एसिड टू फॉर्म अ मेटल सॉल्ट वाइल हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो dilute एसिड से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो मेटल्स बनते हैं सॉल्ट के, और ऑक्सीजन गैस क्या होते हैं उसमें से रिलीज हो जाते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है, मतलब निकल जाती है। ओके, जैसे मेटल प्लस dilute एसिड, ठीक है, तो क्या बन गया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। रिएक्शन विथ वाटर, अगर वाटर से रिएक्शन करता है कुछ मैटर तो वो क्या होता है, मेटल व्हेन रिएक्ट विद द वाटर। मोस्ट मेटल डू नॉट शो एनी ऑब्जर्वेबल एंड फास्ट रिएक्शन विद द कोल्ड वाटर। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ठंडे पानी से रिएक्ट होने के बाद उसकी रिएक्शंस दिखाते नहीं हैं, ठीक है, बट some metal like sodium and potassium react with the cold water to produce their hydroxide and hydrogen gas। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स है जो सोडियम है या फिर पोटेशियम के नाम बात कर ले, वो जब ठंडे पानी से रिएक्ट करता है ना तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्स स्टीम टू गिव सिमिलर रिएक्शन। मैग्नीशियम होता है ना, उसको स्टीम चाहिए होता है तब वो रिएक्ट करता है। समझ में आया? अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटलॉइड की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ठीक है, क्या बोला है, नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन के लास्ट शेल में क्या है, 4 to 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। See the tables are given to you. Now formation of ions. Non-metal have tendency to expect electron in the valence shell to form negative charge icon called anion. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने वैलेंसी को क्या करे, वैलेंसी को क्या करे, चेंज करे, ठीक है, अपनी वैलेंसी की शेल में वो चेंज हो सके और नेगेटिव चार्ज ही बनाए रखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बनाता है। ओके बेटा, जैसे क्लोरीन आयोडीन कैसा बनता है, क्लोरीन आयोन कैसा बनता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड कैसा बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रेट आयोन कैसा बनेगा। रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन देखें हमने नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, नॉन मेटल कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो वो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नॉन मेटल ऑक्साइड। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन द नेचर। ठीक है बेटा, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है नेचर में। दे रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म द सॉल्युबल सॉल्ट एंड वाटर। वो अपने बेस से रिएक्ट करते हैं और जिससे वाटर और सॉल्ट का सेपरेशन होता है। कार्बन सी प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 times ऑफ सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन Na2 नाइट्रोजन कार्बोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन CO2। सी यहाँ पर देखो बेटा, CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2CO3 कार्बोनिक एसिड। SO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड।
ओके, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ पर आपको एक चार्ट बना के दिया गया है। नॉन मेटल मेटल्स के नेम लिखो, उसके यूज लिखो, फिर नॉन मेटल्स के नेम लिखो और उसके यूज लिखो। While studying the chemical property of metal, it is found that gold, silver do not react ready. आपने देखा ना केमिकल प्रॉपर्टीज अभी मेटल्स की, तो उसमें क्या देखा, गोल्ड और सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करता है जल्दी, ठीक है। तो ऐसे जो अभी रिएक्ट नहीं करते तो वो नोबल मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत प्रीशियस, नोबल मेटल बोलते हैं हम लोग उसको। Some metals like gold, silver, platinum, palladium and rhodium are noble metals. ठीक है ना, ये ऐसे मेटल्स होते हैं। पैटेलियम मतलब प्रीशियस मेटल होते हैं ना, पैलेडियम होता है ना जो सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं, समझ में आया। ये रेडियम रेडोम भी जो है ना वैसे ही होता है, ये बहुत प्रीशियस होते हैं, ठीक है। दे ऑकर इन नेचर इन एलिमेंटल स्टेट, ये ऑलरेडी नेचर से ही हमको मिलता है, और ये ऑलरेडी नेचर में क्या है, एलिमेंटल स्टेट में ही है, एलिमेंट बन के ही मिलता है आपको, कुछ आपको और मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोल्ड विच 100% प्योर इज कॉल्ड 24 कैरेट गोल्ड। 100% जो गोल्ड की प्योरिटी होती है उस गोल्ड को हम लोग 100% गोल्ड बोलेंगे, और उसको 24 कैरेट में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, प्योर गोल्ड कैसे होते हैं, जो एकदम प्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट द ऑर्नामेंट मेड फ्रॉम द प्योर गोल्ड बैंड और ब्रेक आउट ड्यू टू द प्रेशर। जब ये ऑर्नामेंट, जो भी चीज़ें बनती है प्योर गोल्ड से, होता क्या है बाद में वो बैंड भी हो सकते हैं और वो टूट जाता है। Therefore गोल्डस्मिथ मिक्स विद द सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर और सिल्वर। इसीलिए गोल्डस्मिथ जो सोनार होता है ना, वो क्या करता है, गोल्ड के अंदर कॉपर या फिर सिल्वर मिक्स करता है, ठीक है। ऑर्नामेंट आर मेड फ्रॉम 22 कैरेट गोल्ड और गोल्ड विद द स्टिल स्मॉलर कैरेट वैल्यू। इसीलिए ऐसे गोल्ड जो जिसमें कॉपर और सिल्वर मिक्स होता है तो उसको हम लोग 22 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। या 21, 18 कैरेट के गोल्ड्स भी आते हैं बेटा। तो उसमें क्या होता है, गोल्ड की प्योरिटी कम होती है, सिल्वर और कॉपर की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो यूज ऑफ नोबल मेटल्स देखते हैं हम लोग। गोल्ड, सिल्वर, पैटेलियम आर यूज इन प्रिपेयर ऑर्नामेंट, है ना। गोल्ड, सिल्वर जो है या पैटेलियम, ये किस में काम आता है, ऑर्नामेंट बनाने। ऑर्नामेंट किसको बोलते हैं, है ना, जो हम लोग लेडीज़ लोग जो कुछ भी चीज़ें गले में कान का बनाते हैं उसको बोलते हैं, अंगूठी, ये सब ऑर्नामेंट होते हैं। सिल्वर यूज इन मेडिसिन, सिल्वर किस में यूज होता है, मेडिसिन यूज होते हैं, क्योंकि इट हैज़ एन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सिल्वर के पास क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स, गोल्ड और सिल्वर किसके लिए होता है, मेडल्स बनाते हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर ऑल्सो यूज इन मेक फ्यू इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, गोल्ड और सिल्वर कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनाने में भी काम आता है। पैटेलियम, पैलेडियम मेटल्स आर यूज इन कैटलिस्ट, ठीक है। पैलेडियम और पैलेडियम, ये पैटेलियम और पैलेडियम क्या है, ये कैटलिस्ट बनाने में काम आता है। चलिए प्योरिटी ऑफ गोल्ड पढ़ते हैं हम लोग। When we ask rate of gold to gold shop, it always differ, है ना। जब भी हम सोने का भाव पूछते हैं तो हर टाइम पे देखो आपको अलग अलग, या हर दुकान पे आपको अलग अलग रेट मिलेगा। Why is so, ये क्यों ऐसा। गोल्ड इज नोबल ऑलवेज डिफर, गोल्ड इज नोबल मैटर इन नेचर, इट ऑकर इन अ एलिमेंट फॉर्म। गोल्ड जो है नोबल मैटर बोला गया है, और ये जो नेचर में आपको एलिमेंट्स के फॉर्म में मिलेगा। 100% गोल्ड और 24 कैरेट, प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट, देयरफॉर दे ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर्ड बाय प्योर गोल्ड मे ब्रेक और बेंड ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है। स्टूडेंट क्या बोला है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड है प्योर होता है 100%, उसमें सिर्फ गोल्ड रहता है, और इसके लिए वो प्रेशर से क्या होता है, आसानी से टूट सकता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है ना। तो therefore gold ornament prepared by pure gold may break or bend due to pressure. Hence goldsmith add specific amount of copper or silver in the pure gold.
इसीलिए जो सोनार होता है उस प्योर गोल्ड में कुछ प्रोपोर्शन सिल्वर या फिर कॉपर का डालता है, जिससे वो आसानी से ऑर्नामेंट बना दे और ऑर्नामेंट टूटता नहीं है। टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट 24 गोल्ड इज यूज्ड। अगर हम लोग देखें जो सोनार जो गोल्ड बनाता है वो 22 कैरेट का होता है। देखिए यहाँ पर 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो 100% होता है, मतलब उसमें 100% सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, गोल्ड होता है, सोना होता है। 22% का जो गोल्ड है वो 91.66% उसमें गोल्ड होता है, मतलब कुछ हम बोल सकते हैं 8.44% जो है वो इम्प्योर है, मतलब उसमें कॉपर या सिल्वर होता है। 18% का गोल्ड जो 18% का कैरेट है उसमें से 75% गोल्ड होता है। 14% का 58.33 गोल्ड होता है। 12 कैरेट का 50% गोल्ड होता है और आधा जो है वो सिल्वर या फिर कॉपर लगाते हैं। 10 कैरेट का गोल्ड होता है 41.6। नॉर्मली 14, 12 और 10 कैरेट के गोल्ड कोई यूज़ नहीं करता है। समझ में आया बेटा? क्योंकि वो इम्प्योर होता है ना, उसमें गोल्ड ही नहीं रहता, उसमें मिक्सचर्स होते हैं, तो लोग क्यों प्रीफर करेंगे। Now we are going to see the corrosion. Corrosion means gas in the air react with the metal in presence of moisture to form a metal compound. गैस जो है एयर से रिएक्ट करती है जो मेटल प्रेजेंट होते हैं मॉइस्चर के अंदर, ठीक है। मेटल्स गेट अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस। मेटल जो है ऑब्वियसली गीलापन से क्या होता है, मेटल खराब हो जाता है। अंडरगोज व्हाट इज कॉल्ड कोरोशन, इसको हम लोग बोलेंगे कोरोशन, ठीक है बेटा। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ कोरोशन इन योर एवरीडे लाइफ। अपने नॉर्मल देखो ना बेटा, आपके घर में कोई लोखंड की चीज़ है या ग्रिल है लोखंड की लगी हुई, पानी की वजह से देखो कुछ समय बाद है ना उसमें जंग खाना चालू हो जाता है, इसको ही कोरोशन बोलते हैं। जो जंग खाता है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोशन। रेडिश कलर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ आयरन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन गैस। देखा है ना आपने लोखंड के ऊपर लाल कलर का एक क्या दिखता है आपको, उसके बाद बारीक बारीक से आप जब हाथ लगाओगे तो आपको वो पाउडर आपके हाथ में आ जाता है रेड कलर का, क्योंकि इसमें जो आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। ग्रीनिश कलर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कॉपर बाय रिएक्टिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है कॉपर, तो वो कौन सा कलर दिखाता है, ग्रीनिश कलर। ब्लैकिश कलर कब होता है, जब वो सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से। ब्लैक कलर कब होता है, जब कोई भी सिल्वर हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक, आपने देखा है ना पायल पैरों में पहनते हैं लेडीज़ लोग, वो पायल जो काली पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होती है, रिएक्ट हो जाती है, ठीक है। टू प्रिवेंट कोरोशन ऑफ मेटल लेयर ऑफ ऑयल ग्रीस वैनिश एंड पेंट आर अप्लाइड ऑन देम, है ना। कोरोशन जंग खाने से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, मेटल्स के ऊपर ऑयल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, उसको साफ करते हैं या पेंट करते हैं, है ना। ऑल्सो पेंटिंग विद द अनदर नॉन कोरोशन मेटल इज डन। अच्छा, पेंटिंग जो है वो दूसरे नॉन कोरोशन मेटल से ही किया जाता है, तो ऐसा मेटल जो जंग नहीं करता, ठीक है। आयरन इज अरेस्टेड बाय जिंक प्लेटिंग। आयरन जो है वो किससे होता है, जिंक प्लेटिंग से होता है। ड्यू टू दिस प्रोसेस द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल सरफेस विथ एयर इज लॉस्ट एंड कोरोशन कैन नॉट ऑकर एट केमिकल रिएक्शन कैन नॉट ऑकर। देखिए इसकी वजह से क्या होता है, मेटल जो है वो एयर में रिएक्ट करने पर क्या होता है, उसकी जो कोरोशन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी उस पर असर नहीं करता है। मैंने तो सिंपल आपको एग्जांपल दी कि आपके घर में जो ग्रिल लगी होती है या जो लोखंड का दरवाज़ा होता है या लोखंड का टेबल होता है, कुछ समय बाद जब उस मॉइस्चर या एयर या कभी कभी पानी की वजह से उस पर जंग खाता है, अब वो जंग को आप हाथ लगाओगे तो आपको रेड कलर का दिखेगा, क्योंकि वो गैस से रिएक्ट हो रहा है। अब उस पर आपको वो चीज़ जंग खराब ना करे, इसीलिए आप क्या करते हो, उसको पेंट करते हो, है ना। पेंटिंग क्या करती है, उस चीज़ को प्रिजर्व करती है। बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना समंदर के अंदर, खारा पानी भी तो वही करता है। खारा पानी जो है वो अगर शिप बहुत टाइम तक समंदर के अंदर रहती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, इतने देर तक खारा पानी से रिएक्ट करने के लिए, सॉल्टी वाटर से रिएक्ट करने के लिए वो शिप के ऊपर क्या करते हैं, बाहर से वो लोग ऑयल पेंट लगाते हैं, ताकि कितना भी देर अगर वो शिप जो है वो
सॉल्टी वाटर के अंदर रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम जब उनका यूज़ नहीं होता है तो जिसकी शीप होती है वो लोग उसको सुखा कर फिर पेंट करके अच्छे से उनको फिर से रेडी करते हैं। समझ में आया? नाउ वी आर गोइंग टू सी एलॉय। A homogeneous mixture of two or more metal of homogeneous mixture metal with the non-metal is called alloy. Alloy जो होता है homogeneous mixture होता है metals या non-metal का, और इसको हम लोग बोलेंगे alloy. Alloy is made by mixing constituent element in as per the requirement. Alloy हम कब mix करते हैं? कोई भी element ऐसा alloy ऐसा element है जो हम लोग mix कर सकते हैं कोई भी metals के अंदर, ठीक है? For example, stainless steel utensils used at home are made of alloy. And iron with the carbon, cadmium and nickel. The alloy bronze is formed from the copper and tin. जो घर में जो स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है? एलॉय होता है। एलॉय मतलब जो आयरन एंड कार्बन उसमें मिक्स होता है, कार्डिनियम एंड निकल मिक्स होता है। ब्रोजन में क्या फॉर्म होता है? ब्रोजन से कॉपर और तीन बनता है, ठीक है? Here we had ended our chapter बेटा। इसके आगे जो कुछ डू यू नो ये सब नहीं पढ़ना है आपको। होप मैंने आपको आज पूरा नॉन मेटल मेटल मेटलॉइड क्या है समझा दी हूँ, समझ में आ गया है, ठीक है बेटा? अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं टीचर ने तो पढ़ लो ताकि लर्निंग पार्ट भी चालू हो जाए आपका। चलो उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा है आपको। हाँ चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।